I'm Ajipal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 7th, chapter 10th, respiration in organism. Yesterday we discussed about the keywords of this chapter 10th. Next we discuss the what you have learnt in this chapter. Okay, a quick revision of this chapter. Respiration is essential for survival of all living organism. It releases energy from the food. Okay, you know about that. Respiration is very essential for living organism. आपको पता है respiration कितना जरूरी है living organism के लिए, because respiration करेंगे तो food में से energy निकलेगी, नहीं तो food खाने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा. The oxygen are inhaled is used to breaking glucose into carbon dioxide and water, and energy is released in this process. जो भी आप चीज खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, वो आपके पेट के अंदर जाकर सिर्फ एक ही चीज बनाता है, ग्लूकोज. ओके, और ग्लूकोज जो क्या होती है, आपको एनर्जी देती है. कब देगी? जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिक्स होगी. ऑक्सीजन कैसे मिक्स होगी? जब आप रेस्पिरेशन करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है आप नाक से बाहर निकाल देते हो, वाटर आपका यूरिन से निकल जाता है, और जो एनर्जी है इस प्रोसेस में रिलीज होती है. The breakdown of glucose occur in cell of the organism is known as cellular respiration. Okay, अगर हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और हर एक सेल से ग्लूकोज में से एनर्जी निकल रही है, that is the cellular respiration. If the food is broken down with the use of oxygen, it is called the aerobic respiration. If the breakdown occur without the use of oxygen, the respiration is called anaerobic respiration. Okay, you know about the aerobic and anaerobic respiration. The respiration which take place in presence of oxygen is aerobic, and in the absence of oxygen is called the anaerobic. During heavy exercise, when supply of oxygen to our muscle cell is insufficient, food breakdown is by anaerobic respiration. आपको पता है जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है. ऑक्सीजन की जब कमी आती है तो ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और फूड जो होता है ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा. ओके, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक in oxygen rich air and give out air rich in carbon dioxide. The respiratory organ for the exchange of gases varies its different organs. उन्होंने बोला है ब्रीथिंग भी रेस्पिरेशन का पार्ट है. ब्रीथिंग के अंदर आप सिर्फ क्या करते हो, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर करते हो और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकालते हो. ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग्स एक्सपेंड एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एज द एयर मूव्स आउटसाइड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. उन्होंने बोला इनहेलेशन के द्वारा हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, बढ़ते हैं, एंड अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं जब हम एयर वापस निकाल देते हैं एक्सहेलेशन के दौरान. इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एनहांस द रेट ऑफ ब्रीथिंग. ओके, जितनी ज्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतनी आपकी ब्रीथिंग की रेट बढ़ जाएगी. In animals like cow, buffalo, dog and cat, the respiratory organs and process of breathing are similar to that of the human. जैसे हम respiration करते हैं, जैसे हमारे lungs होते हैं, similar उनके भी lungs होते हैं. In earthworm, the exchange of gases occur through the most skin. In fishes, it takes place through the gills, and in insect through the trachea. उन्होंने बोला earthworm के अंदर exchange of gases most नमी वाली स्किन से होती है, फिश के अंदर गिल से होती है, और इंसेक्ट के अंदर ट्रैकिया से रेस्पिरेशन होती है. ट्रैकिया आपको पता है ना, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. In a plant, the root take in air present in the soil. Leaves have tiny pore called stomata through which exchange gases, and the breakdown of glucose in a plant cells is similar to that of the living beings. उन्होंने बोला है कि जो प्लांट की रूट होती है उनके अंदर भी सोइल्स के अंदर, आपको पता है सोइल के पार्टिकल के अंदर हवा प्रेजेंट होती है, तो वो टिनी पोर्स स्टोमेटा के जो होते हैं वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को कर देते हैं. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देते हैं और बाद में उसमें से एनर्जी निकलती है जो प्लांट कैप्चर कर लेता है. ओके, तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे. नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race?
आपको पता है एथलीट फास्टर क्यों ब्रीथ करता है जब वो रेस को फिनिश करता है? When the athlete run in the race, the body need more energy. आपको पता है जब एथलीट क्या करता है, रन करता है तो बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. इट ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी द एथलीट ब्रीथ फास्टर. तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए वो फूड खाने की बजाय बहुत तेज़ी से सांस लेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. और बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल, हर अपने सेल को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी. इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन होगा और उसमें से एनर्जी निकलेगी. List the similarity and difference between aerobic and anaerobic respiration. Similarity: food is oxidized in both the case and energy is released. दोनों ही केस में फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है और एनर्जी रिलीज होती है. डिफरेंस: कार्बन डाइऑक्साइड and water are the end product of the aerobic respiration while alcohol is the end product of the anaerobic respiration. Aerobic respiration release more energy than the anaerobic. Okay, aerobic के अंदर ज़्यादा एनर्जी निकलती है और anaerobic के अंदर कम एनर्जी निकलती है. Why do we sneeze when we inhale a lot of dust laden air? जब बहुत ज़्यादा हमारे नाक में मिट्टी वाली एयर चली जाती है तो आप छींक क्यों मारते हो? When dust particle enter nostril, it trigger a message to the brain. जब डस्ट पार्टिकल हमें नोस्ट्रिल में जाता है तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन के पास कि अब यहाँ पे मिट्टी आ चुकी है हमारे नाक के अंदर. द ब्रेन इंस्ट्रक्ट द नाक चैम्बर टू इनिशिएट स्नीजिंग. तो जो ब्रेन होता है वो नाक के चैम्बर को बंद कर देता है और बहुत जल्दी से वो छींक ला देता है. दिस मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द नोस्ट्रिल. और इससे जो अनवांटेड मटेरियल है वो नाक से बाहर आ जाते हैं. स्नीजिंग इज टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय द बॉडी. तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है बॉडी. ओके स्नीजिंग. तो आज हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. ये 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से लिखने हैं. जो चैप्टर आपको बताया गया है उस चैप्टर को आपने अच्छे से उसका व्हाट यू हैव लर्नड चैप्टर की रिवीजन अच्छे से करनी है. तो आज का आपका यही वर्क है. तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.